Jai Bharat, dear all Advaitians. Good morning, everyone. So, in our last lecture, we complete the chapter that is cell, a unit of life, right? Today, we are going to start a new chapter that is biomolecule, in which we are going to study about the carbohydrate, protein, lipid, nucleic acid, enzymes, right? ये सारी चीज़ें जो हैं, it is directly related with one of the chapter that is a genetics, then molecular basis of inheritance, then photosynthesis and respiration. ये चार जो चैप्टर है उसके साथ डायरेक्टली ये कनेक्टेड है एंड ऑल्दो इट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द ऑल फिजियोलॉजी पार्ट, राइट. ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर जो हैं वो भी इसके साथ कनेक्टेड है, राइट. सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. तो यहाँ पे हम पहले बेसिक इंफॉर्मेशन जो लेते हैं, राइट. बायोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, देन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स फाउंड इन प्रोटोप्लाज्म. तो प्रोटोप्लाज्म में जो वेरियस एलिमेंट्स हैं एंड द कंपाउंड, दे कुड बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, राइट. तो वो कंपाउंड्स जो है वो कहाँ पे होंगे? प्रोटोप्लाज्म में, राइट. प्रोटोप्लाज्म इज नथिंग बट द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, और वी कैन से द न्यूक्लियस, cytoplasm and membranous bound organelles together it form what? Protoplasm, right. तो वहां पे ये सारी चीजें होगी. All the carbon compounds that are present in living tissue are called biomolecule. जो भी living tissue में compound होंगे, कौन से compound? Carbon compound, right. कोई भी carbon compound होगा living tissue में, that is considered as what? That is considered as a biomolecule. For example, in this chapter we are going to study about the mainly 4 carbonic compound, right, and that include first of all carbohydrates, right, then the second one is lipid, third one is protein and nucleic acid, right. So these are the main 4 carbonic compound: carbohydrate, lipid, protein and nucleic acid. Out of that, carbohydrate is made up of carbon, hydrogen and oxygen only, right. If we talk about the lipid, lipid is also made up of carbon, hydrogen and oxygen only. So carbohydrate and lipid, they are made up of carbon, hydrogen and oxygen. Now if we talk about the protein, protein has carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur, right. So protein has 2 more elements, that is nitrogen and sulfur. And if we talk about the nucleic acid, that has carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and phosphorus, right. So if you see this, all 4 carbonic compound has carbon in it, right. So these all are carbon containing compound, right, and that is why it is a carbonic compound, right. And if this carbonic compound found in the living tissue, and that is why we consider it as a biomolecule. हम उसको क्या बोलते हैं? Biomolecule, right. Okay, collection of various biomolecules and elements. Biomolecules include what? Biomolecules include carbohydrate, lipid, protein, nucleic acid, vitamins, enzyme, hormones. These all are what? They are biomolecules, right. And elements which are present inside the cytoplasm, right, together they form what? Cellular pool, right. And this cellular pool is basically, we can say that it is a connection to perform metabolic activity within the one ground, that is a matrix of a cytoplasm, ठीक है. तो वहाँ पे biomolecules भी है और दूसरा क्या है? बहुत सारे elements भी हैं, right. Okay. Biomolecules are classified as micromolecule and macromolecule, right, on the basis of their molecular weight. This one is the important, right. यहाँ पे अगर हम बायोमोलिक्यूल की बात करें तो बायोमोलिक्यूल को हमने क्या किया है? वी क्लासिफाइड दिस बायोमोलिक्यूल. ये सपोज बायोमोलिक्यूल हैं, राइट. उसके फॉर्म है अलग अलग. अब अगर हम बायोमोलिक्यूल की बात करें और उसमें अगर उसका एटॉमिक वेट अगर 80 to 800 डाल्टन है, कितना है? 80 to 800 डाल्टन अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल जो हैं वो कैसे हैं? दे आर माइक्रो मॉलिक्यूल. उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रो मॉलिक्यूल. और अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन जो है उससे ज़्यादा है, मीन्स मोर देन 800 डाल्टन, molecular weight कितना है? more than 800 Dalton, then that component, or we can say that that substance will be considered as macromolecule,
मॉलिक्यूल, उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रोमॉलिक्यूल। तो अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि अगर मॉलिक्यूलर वेट 80 to 800 डाल्टन है तो वो किस में आएंगे, माइक्रोमॉलिक्यूल में। और अगर मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज़्यादा है देन दैट विल बी कंसिडर एज अ माइक्रोमॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पे देखिए कि हमने क्लासिफाइड किया बायोमॉलिक्यूल को ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, माइक्रो और मैक्रो। कौन से माइक्रो है, कौन से मैक्रो है, दैट वी विल डिस्कस लेटर इन दिस वीडियो, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोमॉलिक्यूल, these are molecule with molecular weight of from 18 to 800, sorry not 80, 18 to 800। यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, 18 राइट, 18 to 800। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कितना है, 18 to 800, देन दैट बायोमॉलिक्यूल विल कंसिडर एज व्हाट, माइक्रोमॉलिक्यूल। दीज आर मॉलिक्यूल विथ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 18 to 800 डाल्टन, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोमॉलिक्यूल। माइक्रोमॉलिक्यूल में सारे सिंपल जो फॉर्म होंगे बायोमॉलिक्यूल के वो आएंगे, राइट। फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड वो इसमें आएगा, फॉर एग्जांपल मोनोसैकेराइड वो भी माइक्रो में आएगा, ठीक है। तो जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म है वो सब किस में आएंगे, माइक्रोमॉलिक्यूल में, ठीक है। ओके चलिए आगे देखते हैं। दे हैव सिंपल मॉलिक्यूलर कन्फॉर्मेशन, मतलब सिंपल स्ट्रक्चर है उसका, एंड हाई सॉल्युबिलिटी इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड का मतलब क्या होता है, दो फ्लूइड हमने देखे थे, ईसीएफ, ईसीएफ मतलब व्हाट एवर द फ्लूइड आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, दैट इज ईसीएफ। और साइटोप्लाज्मिक पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, दैट इज इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, दैट इज आईसीएफ। क्या बोलेंगे उसको, ICF, ठीक है। तो यहां पे ये पार्ट जो है वो हम वापस यहां से निकाल रहे हैं, ठीक है, 18 to 800 दैट इज माइक्रो। यहां पे अगर मैं एक सेल जो है वो फॉर्म करूं, एंड दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये अंदर का पार्ट जो क्या हुआ, दैट इज ICF, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, और बाहर का पार्ट क्या हुआ, ECF, दैट इज एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। लेकिन सेल जो है दैट एक्ट एज अ क्लोज सिस्टम, सेल जो है वो कैसे एक्ट करता है, एज अ क्लोज सिस्टम, ठीक है। तो यहां पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं सारे, कौन सी हम बात कर रहे हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स की, दैट माइक्रोमॉलिक्यूल्स शोज हाई सॉल्युबिलिटी इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। किसकी बात करें हम, माइक्रोमॉलिक्यूल की। माइक्रोमॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, राइट। दूसरी अगर मैं मैक्रोमॉलिक्यूल की बात करता तो मैक्रोमॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी जो है वो कैसी होगी, बहुत ही निग्लिजिबल, एंड दैट इज वाई अगर आपको कोई भी कार्बनिक कंपाउंड जो है वो स्टोर करना है देन इट शुड बी अ मैक्रो फॉर्म, मतलब वो कौन से फॉर्म में होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म की सॉल्युबिलिटी जो कैसी होगी, कम होगी। फॉर एग्जांपल स्टार्च, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन, फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज, ये सब जो है वो क्या है, पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड की सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, बहुत ही कम, और मोनोसैकेराइड की कैसी होगी, ज्यादा, राइट। तो माइक्रोमॉलिक्यूल जो है दे शोज हाई सॉल्युबिलिटी इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, ठीक है। तो माइक्रो कहां से कहां रेंज जो कितनी है, 18 to 800 डाल्टन। अगर मॉलिक्यूलर वेट इतना है, कितना, 18 to 800 डाल्टन, तो हम उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल। चलिए एग्जाम्पल है उसके कौन कौन से, मिनरल्स, देन अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन, then nitrogen base is a part of nucleotide, then lipid, right, and monosaccharide। यहां पे एक चीज आपको अलग से जो याद रखनी है वो याद रखना है आपको लिपिड, ठीक है। लिपिड में एक डिफरेंस है, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। लिपिड जो है वो यहां पे हम बात करें दैट इज अबाउट ट्राइग्लिसराइड। हम कौन सा लिपिड की बात कर रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड। अब यहां पे देखिए मैं सारे कार्बनिक कंपाउंड जो वापस लिख रहा हूं उसका सिंपल और कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो हम देख रहे हैं, ठीक है। ओके अब वो कार्बनिक कंपाउंड अगर हम लिखे तो सपोज मैं पहले यहां पे लिख रहा हूं कार्बोहाइड्रेट, किसकी बात कर रहे हैं हम, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में जो सिंपल फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, दैट इज मोनोसैकेराइड। कौन सा होगा, मोनोसैकेराइड। और उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म कौन सा होगा, पॉलीसैकेराइड। कौन सा फॉर्म होगा, पॉलीसैकेराइड। अगर मैं मोनोसैकेराइड का एग्जांपल लिखूं तो वो एग्जांपल जो है वो क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, ठीक है। और पॉलीसैकेराइड का अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, दैट इज पॉलीसैकेराइड। तो ग्लूकोज जो है वो कैसा है, माइक्रोमॉलिक्यूल, और स्टार्च जो है वो कैसा है, मैक्रोमॉलिक्यूल। अब यहां पे जो प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस यहां पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ, ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड, एंड द प्रोसेस इज व्हाट, प्रोसेस इज डिहाइड्रेशन, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल जो है दैट विल मूव आउट एंड ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू सक्सेसिव शुगर एंड इट फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल। तो सिंपल में से क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ओके, तो ये कैसा शुगर है, ये जो मॉलिक्यूल है बायोमॉलिक्यूल, ये भी मोनोसैकेराइड भी बायोमॉलिक्यूल है, पॉलीसैकेराइड भी बायोमॉलिक्यूल है, लेकिन मोनोसैकेराइड जो है वो कैसा है, माइक्रो मॉलिक्यूल है, और ये कैसा है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट जो कैसा होगा, फ्रॉम 18 to 800, इसका कैसा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये हमने बात की कार्बोहाइड्रेट की। सेकंड अगर हम बात करें तो सपोज हम ले रहे हैं लिपिड, ठीक है। तो लिपिड जो है उसमें सिंपल फॉर्म जो कौन सा है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये उसके मोनोमर है, और ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो कन्वर्ट होंगे किसमें, लिपिड, और वो लिपिड जो है वो कौन सा होगा, ट्राइग्लिसराइड, कौन सा होगा, ट्राइग्लिसराइड, लिपिड कौन सा होगा, ट्राइग्लिसराइड। तो फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल एंड ग्लिसरॉल का 1 मॉलिक्यूल, वो दोनों जब अटैच होंगे, कौन से बॉन्ड से, यहां पे जो बॉन्ड होगा दैट इज एस्टर बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड होगा, एस्टर बॉन्ड, और यहां पे भी क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन की प्रोसेस हो रही है, और उससे सिंपल जो मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। लेकिन यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो लिपिड है वो एंटायर, मतलब ट्राइग्लिसराइड बनने के बाद भी वो लिपिड जो है उसको हम किस में ले रहे हैं, लिपिड इज कंसिडर एज व्हाट, माइक्रो मॉलिक्यूल, भले ही वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, लेकिन उसका हम यहाँ पे सिंपल कॉम्प्लेक्स नहीं बात करें, हम बात किसकी करें, मॉलिक्यूलर वेट जो है उसके बेसिस पे वो माइक्रो है या फिर मैक्रो है। तो लिपिड जो है विच इज फॉर्म बाय द 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड की अगर हम बात करें तो वो लिपिड जो है वो माइक्रो मॉलिक्यूल है, वो मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है, ये याद रखना। और ऐसा क्यों है वो हम आगे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये बात की हमने लिपिड की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये सपोज अब हम बात करें सपोज प्रोटीन की, अब आप किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटीन की। प्रोटीन के मोनोमर जो यूनिट होंगे वो कौन से होंगे, एमिनो एसिड, ठीक है। और वो एमिनो एसिड से क्या बनेगा, प्रोटीन जो है वो फॉर्म होगा। यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, पेप्टाइड बॉन्ड, और यहाँ पे भी हम ये बोल सकते हैं कि डिहाइड्रेशन प्रोसेस हो रही है। तो अमाइनो एसिड दैट इज अ मोनोमर ऑफ प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल, प्रोटीन क्या है, वो मैक्रो मॉलिक्यूल है। एक सिर्फ आपको याद रखना है, लिपिड में ही, लिपिड जो है उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है दैट इज ट्राइग्लिसराइड, उसका भी मॉलिक्यूलर वेट जो है दैट इज अराउंड 800, इसलिए वो भले ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म है लेकिन फिर भी वो क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल है। बाकी स्टार्च, पॉलीसैकेराइड सब वो कैसे हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल, प्रोटीन जो है वो कैसे हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हम एक और कंपाउंड लेते हैं दैट इज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इंक्लूड व्हाट, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड एंड रिबोन्यूक्लिक एसिड। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसके मोनोमर कौन है, मोनोमर जो है दैट इज न्यूक्लियोटाइड। क्यों, कौन मोनोमर है, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या फॉर्म करता है, न्यूक्लिक एसिड। इट कुड बी आरएनए और डीएनए, दोनों में से कोई भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द न्यूक्लियोटाइड। अगर रिबोन्यूक्लियोटाइड होगा देन इट फॉर्म आरएनए, अगर डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड होगा देन इट फॉर्म डीएनए। ये पार्ट जो है वो हम इसी चैप्टर में आगे भी देखेंगे। यहां पे जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है दैट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और यहां पे भी हम ये बोल सकते हैं कि डिहाइड्रेशन जो है वो होगा, दैट मींस देयर इज अ रिमूवल ऑफ अ H2O पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये सारे प्रोसेस में आप देखिए, सिंपल कन्वर्टेड इनटू द कॉम्प्लेक्स वन, और ये सारी प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल जो है दैट विल मूव आउट, ठीक है। तो सिंपल जो है वो किस में फॉर्म हो रहा है, कॉम्प्लेक्स में। अगर सिंपल जो है वो कॉम्प्लेक्स में फॉर्म हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि ये सारी प्रोसेसेस जो है वो सारी कैसी प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेसेस है, राइट। क्योंकि सिंपल जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉम्प्लेक्स में। ये सारी प्रोसेस में एनर्जी जो है वो स्टोर होगी, ठीक है। ये सारी प्रोसेस जो है उसमें हम ये बोल सकते हैं कि ये सारी प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो रहा है, इट विल मूव आउट। अब ये सारी प्रोसेस अगर हम उल्टी देखें, मींस न्यूक्लिक एसिड कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोटाइड, पॉलीसैकेराइड कन्वर्टेड इनटू द मोनोसैकेराइड, प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड, लिपिड कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, तो वो सब क्या होगा, दैट इज हाइड्रोलाइसिस।
एड ऑन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल एंड क्लीवेज और वी कैन से द लाइसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन। ये सारी प्रोसेस जो क्या है, दैट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मींस सिंपल कन्वर्टेड इनटू द कॉम्प्लेक्स, दैट इज बेसिकली एनाबॉलिक प्रोसेस। और डाइजेशन की अगर हम बात करें तो डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, सिंपल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये सारे कार्बनिक कंपाउंड जो है वो ये इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। लिपिड आपको अलग से याद रखना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, so these are the examples that include mineral, amino acid, nitrogen bases, lipid, monosaccharide. They are what? They are microbiomolecule. They are microbiomolecule means what? We can say that their molecular weight would be 18 to 800. That is the range, right? In between somehow we can say that ये molecular weight जो है उनका 18 to 800 की range में कहीं पे होगा, right? They are detected in acid soluble pool, राइट, एक्सेप्ट लिपिड। अब ये जो पॉइंट है वो क्या कहना चाहता है, वो एक एक्सपेरिमेंट है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। याद रखना, दे आर मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट द बायो माइक्रोमोलिक्यूल, स्मॉलर वन, राइट, दोज हु हैविंग अ मॉलिक्यूलर वेट फ्रॉम 18 to 800। दे आर डिटेक्टेड इन एसिड सॉल्युबल पूल एक्सेप्ट लिपिड। एक लिपिड जो है वो एसिड सॉल्युबल पूल में नहीं होगा, लिपिड किस में नहीं होगा, एसिड सॉल्युबल पूल में वो नहीं होगा, ठीक है। बाकी अदरवाइज सारे जो माइक्रोमोलिक्यूल हैं दे आर फाउंड इन एसिड सॉल्युबल पूल, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि लिपिड माइक्रोमोलिक्यूल नहीं है, लिपिड माइक्रोमोलिक्यूल ही है, बट इट विल नॉट डिटेक्टेड इन द एसिड सॉल्युबल पूल। ऐसा क्यों है वो हम आगे देख रहे हैं, राइट, ओके। 25 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर फाउंड इन इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। So total number, there are 25 elements that are present inside the cytoplasm as well as in ECF. अब उसमें भी तीन कैटेगरी है, मेजर, देन माइनर एंड देन ट्रेस एलिमेंट। मेजर जो है उसमें कौन कौन से है पहले वो देखते हैं। मेजर एलिमेंट्स इंक्लूड 4 in number, that include carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen, right, and that makes 95% of the cellular pool। तो टोटल सेल्यूलर पूल में जो भी एलिमेंट्स हैं टोटल 25 है, किस में, साइटोप्लाज्म में, मतलब आईसीएफ में एज वेल एज ईसीएफ में। लेकिन उसमें से अगर हम 4 मेजर एलिमेंट जो वो अगर काउंट करें, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो आप याद करो, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में, लिपिड में, न्यूक्लिक एसिड में, सब में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर कॉमन, राइट। नाइट्रोजन जो था वो किस में था, नाइट्रोजन जो है दैट इज प्रेजेंट इन बोथ, इट इज प्रेजेंट इन प्रोटीन एज वेल एज न्यूक्लिक एसिड। वो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड में नहीं होता है, बट स्टिल together these 4 form 95% of the cellular pool in terms of elements, right? If we talk about the minor elements they are 9 in number, that include what, calcium, then sodium, potassium, magnesium, iron, phosphorus, sulfur, chlorine and iodine. So these are 9 elements. Which are they? Calcium, sodium, potassium, magnesium, iron, phosphorus, sulfur, chlorine and iodine. These are the minor elements and they contribute around 5% of the total cellular pool, right? Now the third category, this become almost 100%, right? Major is about 95%, minor is 5%, right? Now the third category is trace element which are present in very small concentration or small in amount. For example, trace element, these include 12 in number. So major element कितने हैं, 4, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। माइनर एलिमेंट कितने हैं, 9, और ट्रेस एलिमेंट कितने हैं, 12, लेकिन वो बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में। दैट इंक्लूड्स व्हाट, दैट इंक्लूड्स कॉपर, दैट इंक्लूड्स कोबाल्ट, जिंक, सिलिकॉन, मैंगनीज, फ्लोरीन, वैनेडियम, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, क्रोमियम, टिन एंड एल्यूमिनियम। ये बार जो हैं दे आर मेटल एलिमेंट्स, राइट। ये जो बार जो एलिमेंट्स हैं, राइट, दैट मेक्स अराउंड 1% ऑफ द सेल्यूलर पूल। तो एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, देन एलिमेंट्स आर, वी कैन से दैट इट इज क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरी। One is major, that includes 4, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and that comprising almost 95% of the total element cellular pool, right. The remaining the next category is what, the next category is minor element, that includes 9 elements and that is almost 5%, total 100% तो complete हो गए। तो trace element जो है that is in very small quantity, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पे एलिमेंट्स को हमने डिवाइड किया मेजर, माइनर और ट्रेस में, और ये सारे मैंने सिंपल कंपाउंड लिखे हैं, ये उसके सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये प्रोसेस सारी क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, उसकी रिवर्स जो क्या हो जाएगी, डाइजेशन प्रोसेस। ये कैसा है, एसिमिलेशन प्रोसेस। देयर इज अ रिमूवल ऑफ H2O in all the processes, लेकिन जब हम डाइजेशन कर रहे हैं that time add on of the H2O and lysis process of the complex that will convert it into the simple one, right? चलिए, elements that is carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus are the protoplasmic element. Why it is called protoplasmic element? Because protoplasm include what? Protoplasm include nucleus as well as nucleoplasm, which is present inside the nucleus, then organelles, and then cytoplasm. And all these contain are made up of what? Structurally they are made up of bilayer of phospholipid, and on either side of this layer there is a protein contained, right? तो ये अगर हम देखें तो देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वो तो तीनों में, दोनों में है, प्रोटीन एंड लिपिड में। नाइट्रोजन एंड सल्फर दे आर प्रेजेंट इन व्हाट? दे आर प्रेजेंट इन अ प्रोटीन। एंड नाइट्रोजन एंड फास्फोरस दे आर प्रेजेंट इन व्हाट? दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। तो जेनेटिक मटेरियल भी है। तो ये प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट में ये 6 एलिमेंट जो है, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर, ये जो है दे आर प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट। सो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्मा इज फॉर्म बाय दिस बेसिक 6 एलिमेंट। लेकिन इसमें से भी 4 कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, they are around 95% of the total cellular elements pool, right? Now the other one is macromolecule. अब माइक्रो किसको बोल रहे थे? 18 to 800 डाल्टन। अगर उससे ज्यादा होगा that will be considered as a macromolecule। उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? मैक्रोमोलिक्यूल। These are molecule with molecular weight more than 800 dalton. So from 18 to 800, that would be considered as what? Micromolecule, biomicromolecule. And if that is more than 800, that will be considered as what? Macromolecule. They are all complex form. They have complex conformation and low solubility in intracellular fluid. सारे जो macromolecule है, they are complex in structure. For example, polysaccharide, for example, protein, for example, DNA, that is nucleic acid, RNA. ये सारे कैसे हैं? They are complex form, right? And they are insoluble in cellular part, right, or intracellular fluid. Okay, all macromolecules are polymer. सारे macromolecules जो हैं they are polymer. Protein क्या है? It is a polymer of what? Amino acid. Nucleic acid क्या है? It is a polymer of what? Nucleotide. Polysaccharide it is a polymer of what? Monosaccharide. सब क्या है? Polymer. एक लिपिड याद रखना, लिपिड जो क्या है? That is micromolecule, right? Example, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड एंड न्यूक्लिक एसिड। देखिए यहाँ पे लिपिड नहीं है। लिपिड क्यों नहीं है? लेकिन लिपिड जो है वो हम किस में काउंट कर रहे हैं? माइक्रोमोलिक्यूल में, क्योंकि मैक्रो और माइक्रो जो है वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स से नहीं होता। द बेसिस दैट वी कंसिडर वेदर इट इज दैट मॉलिक्यूल इज माइक्रो और मैक्रो, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट। तो लिपिड जो है वो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 800। दैट इज व्हाई वी कंसिडर इट एज अ माइक्रो, नॉट मैक्रो। ठीक है, तो मैक्रो में हम 3 कंसिडर कर रहे हैं, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड एंड न्यूक्लिक एसिड। ओके, एनालिसिस ऑफ टिश्यू टू फाइंड द केमिकल कंपोजिशन, इसके लिए एक एनालिसिस हम कर रहे हैं टिश्यू का। इन ऑर्डर टू स्टडी द वेरियस बायोमोलिक्यूल फाउंड इन लिविंग टिश्यू of plant as well as in animal, the tissue is ground, or we can say the grind in a trichloroacetic acid using pestle and mortar. ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट है वो हम समझते हैं। सपोजिंग दैट यहाँ पे हमारे पास एक एक बीकर है, राइट? दिस इज द बीकर। ये बीकर हो गया, ठीक है। अब ये बीकर जो है उसके अंदर हम रख रहे हैं क्या? फनल। हम क्या रख रहे हैं इसके अंदर? फनल, राइट? सो दिस इज बेसिकली अ फनल। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द फनल, राइट? और ये फनल जो है वी पुट 1 फिल्टर पेपर इन इट। फनल के अंदर क्या है? फिल्टर पेपर, राइट? दिस इज द फिल्टर पेपर। चलिए, तो हमने बीकर लिया है, देन आफ्टर वी पुट अ फनल ऑन इट एंड इनसाइड द फनल वी पुट व्हाट? अ फिल्टर पेपर। हमने क्या रखा है? फिल्टर पेपर। अब इसके अलावा हम ले रहे हैं एक स्लरी। वो स्लरी जो है वो किससे हमने बनाई है? कंसिडर दैट दिस इज नथिंग बट द एनिमल टिश्यू। ये सारे जो हैं वो क्या है? इट इज नथिंग बट द एनिमल टिश्यू। ये क्या है? एनिमल टिश्यू। इट कुड बी अ प्लांट टिश्यू टू, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ओके, और ये एनिमल टिश्यू को हम क्या कर रहे हैं? हम उसका एक क्रश बना रहे हैं, स्लरी बना रहे हैं विथ व्हाट? ट्राइक्लोरो
एसिटिक एसिड। किसमें हम कर रहे हैं? ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड एंड एनिमल टिश्यू, उसको हम क्या कर रहे हैं? उसको ग्राइंड कर रहे हैं और उसका क्या बना रहे हैं? स्लरी। और वो जो स्लरी हमने बनाया है, देन आफ्टर वी पोर दैट स्लरी इनटू दिस फनल। हम फनल में वो स्लरी क्या कर रहे हैं? पोर कर रहे हैं, जहां पे क्या है? ऑलरेडी फिल्टर पेपर जो है वो है। तो यहां पे एक कंटेंट जो है वो एक्यूमुलेट होगा। वो कंटेंट जो कहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है? फ्लास्क में या फिर बीकर में, ठीक है। यहां पे जो कंटेंट एक्यूमुलेट हो रहा है दैट इज नथिंग बट द एसिड soluble pool, और वी कैन से दैट एसिड soluble substance। फ्लास्क या फिर बीकर के अंदर क्या आ जाएगा? जो भी एसिड soluble कंटेंट होगा, बायोमोलिक्यूल्स होंगे, दैट विल एक्यूमुलेट एट द बॉटम ऑफ दिस फ्लास्क, एंड दोज हु आर नॉट एसिड soluble दे आर एक्यूमुलेट इन द फनल। वो सारे जो है वो कहां पे इकट्ठे होंगे? फनल में। और वो सब कैसे होंगे? एसिड इनसॉल्युबल पूल, या फिर हम ये बोल सकते हैं एसिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो एसिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस दे विल एक्यूमुलेट इनसाइड द फनल, राइट, और विद इन द फिल्टर पेपर, एंड दोज हु आर एसिड सॉल्युबल दे फिल्टर एंड एक्यूमुलेट एट द बॉटम ऑफ अ बीकर, और वी कैन से दैट द फ्लास्क, ठीक है। तो यहां पे देखिए वापस वो एनालिसिस पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू स्टडी द वेरियस बायोमोलिक्यूल फाउंड इन लिविंग टिश्यू ऑफ प्लांट और एनिमल और प्लांट में जो भी लिविंग टिश्यू है उसमें कौन कौन से कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, टू फाइंड आउट दैट द टिश्यू इज ग्राइंड इन अ ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड। हमने किसमें ग्राउंड किया है या फिर ग्राइंड किया है? ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड में। और उससे हमने क्या बनाया? स्लरी यूजिंग पेस्टल एंड मोर्टर। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? वो पेस्ट जो है वो बना के हम उसको ये फिल्टर पेपर में रख रहे हैं। अब जो एसिड इनसॉल्युबल पूल जो है वो यहां पे है, जो एसिड सॉल्युबल नहीं है वो मॉलिक्यूल कहां पे होंगे? ऊपर, ठीक है। और वो एसिड जो इनसॉल्युबल पूल है, वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं दैट इंक्लूड पॉलीसैकेराइड, दैट इंक्लूड प्रोटीन, दैट इंक्लूड न्यूक्लिक एसिड, एंड दैट आल्सो इंक्लूड लिपिड, ठीक है। तो ये सारे पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, ये सब कहां पे एक्यूमुलेट हुए हैं? एसिड इनसॉल्युबल पूल में एक्यूमुलेट हुए हैं, ठीक है। और एसिड सॉल्युबल पूल में क्या एक्यूमुलेट हुआ? एसिड सॉल्युबल पूल में अमाइनो एसिड, ठीक है, इसके अलावा मोनोसैकेराइड, इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड एंड मिनरल आयंस। ये सब जो है वो कहां पे एक्यूमुलेट होगा? एसिड सॉल्युबल पूल में। तो बॉटम में ये जो हम ये बोल रहे हैं कि बीकर जो है उसमें एसिड सॉल्युबल सब्सटेंस जो है दैट विल एक्यूमुलेट इन द बीकर, और वो क्या है? एमिनो एसिड, मोनोसैकेराइड, न्यूक्लियोटाइड, मिनरल आयन। और बेसिकली ये सब जो कंपोनेंट है उसको हम क्या काउंट कर रहे हैं? वी कंसिडर इट एज अ माइक्रो बायो मॉलिक्यूल। इसको हम क्या काउंट कर रहे हैं? माइक्रो बायो मॉलिक्यूल, ठीक है। वो क्या रहे? सारे कैसे सारे जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उन सब का अगर हम मॉलिक्यूलर वेट जो है काउंट करें तो वो कितना होगा? 8 × 800 होगा, ठीक है। तो एसिड सॉल्युबल पूल जो है उसमें सारे जो मॉलिक्यूल है दे आर माइक्रो मॉलिक्यूल और बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। और अब एसिड इनसॉल्युबल पूल की बात करें तो एसिड इनसॉल्युबल पूल में सब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है एक्यूमुलेट हुआ है, दैट इंक्लूड्स पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड। तो इसमें पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, दिस थ्री कंसिडर एज मैक्रो मॉलिक्यूल। कौन कौन से तीन? पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ये तीनों क्या है? दे आर मैक्रो मॉलिक्यूल, नॉट जस्ट बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल बट बिकॉज देयर मॉलिक्यूलर वेट इज मोर देन 800 डाल्टन, ठीक है। अब लिपिड की अगर हम बात करें तो लिपिड जो है इट इज नथिंग बट द माइक्रो मॉलिक्यूल। लिपिड जो है वो अकेला कैसा है? माइक्रोमोलिक्यूल, बट स्टिल दे आर फाउंड इन व्हाट? दे आर फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल पूल। और वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में इसलिए है बिकॉज लिपिड इज रिमेन इनसॉल्युबल in this trichloroacetic acid solution, and that is because that lipid is form a small vesicles which are not filtered from filter paper. वो filter paper से क्या नहीं हुआ है? filter नहीं हुआ है, and that is because they are accumulated in the funnel, but it doesn't mean that lipid is a macromolecule. lipid का molecular weight कितना है? 800, ठीक है। इसलिए वो आपको मिलेगा किसमें? एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलेगा,
ठीक है। बाकी अदरवाइज सारे माइक्रोमोलिक्यूल किस में मिल रहे हैं, एसिड सॉल्युबल पूल में। सिर्फ लिपिड एक ऐसा माइक्रोमोलिक्यूल है दैट विल फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल पूल, लेकिन हम उसको कंसिडर क्या करेंगे, माइक्रोमोलिक्यूल ही कंसिडर करेंगे, बिकॉज कि उसका मॉलिक्यूलर वेट जो क्या है 800 डाल्टन। ये समझ में आ गया। मिलेगा कहां पे लिपिड, एसिड इनसॉल्युबल पूल में वो मिलेगा, ठीक है। चलिए, द स्लरी इज फिल्टर्ड, उसके बाद हम क्या करें, द स्लरी इज फिल्टर्ड एंड 2 कंपोनेंट्स आर ऑब्टेन्ड। स्लरी जब आप फिल्टर करेंगे तो 2 कंपोनेंट आपको मिलेंगे, एक एसिड सॉल्युबल जो कहां पे होगा, बीकर में, दूसरा एसिड इनसॉल्युबल जो कहां पे होगा, फनल में, फिल्टर पेपर में। याद क्या रखना है, लिपिड मिलेगा कहां पे, एसिड इनसॉल्युबल पूल में। है क्या वो, माइक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है। चलिए, द फिल्ट्रेट और सुपरटेंट इज कॉल्ड द एसिड सॉल्युबल पूल। जो भी फिल्टर हो चुका है उसको क्या बोलेंगे, एसिड सॉल्युबल पूल। एंड द रेसिड्यू विच विल रिमेन इन द फनल दे आर कंसिडर्ड एज अ एसिड इनसॉल्युबल पूल। जो फिल्टर पेपर में रह चुका है दैट इज एसिड इनसॉल्युबल, और जो किस में आ चुका है, बीकर में आ चुका है, दैट इज एसिड सॉल्युबल, राइट। एसिड सॉल्युबल पूल कंटेन्स माइक्रोमोलिक्यूल। एसिड सॉल्युबल कहां पे था, बीकर में, वो सब क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल with molecular weight less than 800 Dalton like amino acid, simple sugar, inorganic compound like sulfate and phosphate। तो ये एलिमेंट हुए, ये सब कहाँ पे मिलेंगे, वो सब हमको मिलेंगे नीचे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, अमाइनो एसिड, फिर मैंने क्या लिखा था, मोनोसेकेराइड, फिर मैंने क्या लिखा था, न्यूक्लियोटाइड, और फिर मैंने क्या लिखा था, मिनरल आयन। वो सब कहाँ पे मिलेंगे, वो एसिड सॉल्युबल पूल में भी। यहाँ पे देखिए मैंने लिपिड नहीं लिखा है, ऑल्दो लिपिड है क्या, इट इज अ माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एसिड सॉल्युबल पूल की, इनसॉल्युबल पूल की बात नहीं कर रहे हैं। तो एसिड सॉल्युबल पूल में जो सभी जो है वो क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल ही है, लेकिन लिपिड मिलेगा कहां पे, एसिड इनसॉल्युबल में। लेकिन फिर भी वो है क्या, लिपिड इज अ माइक्रोमोलिक्यूल, वो भी क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल ही है। लेकिन एसिड सॉल्युबल पूल में वो नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी है नहीं। एसिड इनसॉल्युबल पूल कंटेन्स मैक्रोमोलिक्यूल, जो फनल में है वो, राइट, लाइक प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड। यहां पे देखिए मैंने लिपिड लिखा है, लिपिड नहीं मैंने लिखा है क्योंकि एसिड इनसॉल्युबल पूल में लिपिड है बट वो मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, वो क्या है, वो माइक्रोमोलिक्यूल है, राइट। अब वो पॉइंट देखिए ध्यान से, लिपिड धो हैव मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन। लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 800 डाल्टन। वो मिलना कहां पे चाहिए, एसिड सॉल्युबल पूल में, क्योंकि वो माइक्रो है, ठीक है, ओके। लेकिन वो मिल कहां पे रहा है, इनसॉल्युबल पूल में। Lipid though have molecular weight 800 Dalton but are found in acid insoluble pool। कहाँ पे मिलेगा वो, फनल में, acid insoluble pool due to their non-polar nature because it is not soluble, right, as they are insoluble in water, ठीक है। इसलिए वो वहाँ पे डिजोल्व नहीं हो रहा है, and that is why lipid form a small vesicles and that vesicle cannot filtered by that filter paper and that is why it is found in acid insoluble pool। लेकिन acid insoluble pool में है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैक्रो है, क्योंकि हम माइक्रो या मैक्रो वो किससे डिसाइड कर रहे हैं, हम डिसाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इट, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम देख रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट जो मैंने बात की कि जो सिंपल फॉर्म मैंने लिया यहाँ पे लिखे, फिर मैंने कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखे, फिर वही कॉम्प्लेक्स जब जरूरत होगी तब किस में कन्वर्ट होंगे, बाय डाइजेशन इट विल कन्वर्ट इनटू सिंपल वन। तो सिंपल जो है उसमें से कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, दैट इज एसिमिलेशन प्रोसेस, और कॉम्प्लेक्स में से जब सिंपल कन्वर्ट होगा दैट इज नथिंग बट द डाइजेशन, ठीक है। तो वो सारे जो हैं उसके डायरेक्ट रोल हमको मालूम है, कार्बोहाइड्रेट का डायरेक्ट रोल हमको मालूम है, राइट। अमाइनो एसिड, प्रोटीन का डायरेक्ट रोल मेटाबॉलिज्म में क्या है वो हमको मालूम है। न्यूक्लिक एसिड जो है इट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, वो हम जानते हैं, राइट। लिपिड जो है दैट इज वन ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द ऑल द मेम्ब्रेन दैट वी नो वेरी वेल। प्रोटीन जो है आइदर इट कुड बी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, एंजाइम हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, या फिर फाइबर्स भी हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमको मालूम है। सो बेसिकली दोज substances or we can say that the metabolites whose function is very well known, उसके फंक्शन जो हम जानते हैं, राइट, मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली, वो जो है वो क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और ऐसे भी सब्सटेंस है विच आर फॉर्म्ड इन प्लांट एज वेल एज इन एनिमल, लेकिन उसका मेटाबॉलिज्म में क्या फंक्शन है वो हमको मालूम नहीं है, दे आर कंसिडर्ड एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो मेटाबॉलिज्म में रोल क्या है जिसका मालूम है वो प्राइमरी, और जिसका रोल क्यों है, क्या है, वो मालूम नहीं है, दैट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ओके, बायोमोलिक्यूल्स आर ऑल्सो कॉल्ड मेटाबोलाइट्स एंड they can be classified as primary and secondary metabolites। जो बायोमोलिक्यूल्स जो है
उसको हम मेटाबोलाइट्स भी बोल सकते हैं, एंड दे कुड बी ऑफ टू टाइप, आइदर इट वुड बी अ प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जिसका डायरेक्ट रोल मेटाबॉलिज्म में है, वो हम जानते हैं, राइट। ओके, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर दोज बायोमोलिक्यूल्स विच हैव आइडेंटिफिएबल फंक्शन, उसका फंक्शन जो है वो नोन फंक्शन है, राइट, एंड प्ले नोन रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। प्राइमरी मेटाबॉलिज्म किसको बोलेंगे? जिसका फंक्शन हम जानते हैं, जिसका फंक्शन क्या है वो हमको मालूम है, वो आइडेंटिफाइड हम कर सकते हैं, और उसका डायरेक्ट रोल किस में है? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में। उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। एग्जांपल अमाइनो एसिड हम जानते हैं, शुगर फंक्शन हम जानते हैं, पॉलीसैकेराइड फंक्शन हम जानते हैं, राइट। ओके, नाउ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर दोज हुज फंक्शंस आर नॉट क्लियरली अंडरस्टूड। मेटाबॉलिज्म में क्या रोल है वो हमको मालूम नहीं है, बट स्टिल दे फॉर्म इनसाइड द प्लांट, दे फॉर्म इनसाइड द एनिमल, मैक्सिमम वो प्लांट में फॉर्म हो रहे हैं। Yet some secondary metabolites have some ecological importance. ऐसे secondary metabolites बहुत है जिसका economical importance है। ऐसे कौन कौन से है? फॉर एग्जाम्पल गम, फॉर एग्जाम्पल रेसिन, फॉर एग्जाम्पल रायन, फॉर एग्जाम्पल हम कोडिन बोल सकते हैं, अल्कलॉइड्स बोल सकते हैं, ये सब इसमें आएगा कि जो फॉर्म हो रहा है प्लांट में। लेकिन क्यों हो रहा है? क्योंकि वो मेटाबोलाइट्स डायरेक्टली मेटाबॉलिज्म में तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहे, राइट। सो फॉर प्लांट बेसिकली इट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, बट उसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, तो वो हम क्या कंसिडर करेंगे? दैट बायोमोलिक्यूल इज कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है उसके एग्जांपल लिए हैं। फॉर एग्जांपल पिगमेंट हम ले रहे हैं, तो पिगमेंट में कैरोटीनॉइड्स का डायरेक्ट रोल क्या है? क्योंकि मेन पिगमेंट में वो नहीं है, मेन पिगमेंट जो वो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई, ठीक है, ओके। उसके अलावा अल्कलॉइड्स, राइट, एग्जाम्पल मॉर्फिन, कोडीन, ये सब किसके लिए होते हैं? ये सारे जो हैं that develops dizziness, right? Basically person is become habituated to this alkaloid. Then terpenoids, that includes what? Monoterpenes and diterpenes, right? They are polymers. Then essential oil, for example lemongrass oil, वो भी डेवलप हो रहा है। क्यों हो रहा है? उसमें मेटाबॉलिज्म में कोई रोल है नहीं है, डायरेक्टली कोई रोल, ठीक है, तो वो सेकेंडरी हो गया। देन सम टॉक्सिन्स इंक्लूड्स एब्रिन एंड राइसिन, ये दोनों टॉक्सिक सब्सटेंस है विच इज फाउंड इन द प्लांट, लेकिन क्यों हो रहा है? Don't know, right? Lactins means milk-like substances which is secreted by the plant that contain what? Concanavalin A, that is also poisonous. Then some drugs, for example vinblastine and curcumin, right? These are the drugs which is formed in plant. क्यों हो रहा है? मालूम नहीं, so it is secondary metabolites. Then polymeric substances, for example rubber, gum, cellulose, ठीक है, इसका भी डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में कोई रोल नहीं है। सेल्यूलोज का भी डायरेक्ट मेटाबॉलिज्म में कोई रोल नहीं है, राइट, ओके। चलिए, तो ये हमने यहाँ पे हमने अलग अलग जो है वो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में सभी ऑलमोस्ट सारे कार्बनिक कंपाउंड जो हमने थोड़ी थोड़ी डिटेल ली, किसको हम माइक्रो बोलेंगे, किसको हम मैक्रो बोलेंगे। 18 से 800 डाल्टन तो माइक्रो, और 800 डाल्टन से ज़्यादा तो मैक्रो। अब याद क्या रखना है? लिपिड मिलेगा कि इसमें एसिड इनसॉल्युबल पूल में, बट बेसिकली उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 800, ठीक है, तो उसको हम काउंट किस में करेंगे? माइक्रो में, ऑल्दो दे आर फाउंड इन एसिड इनसॉल्युबल पूल, लेकिन फिर भी वो है क्या? वो माइक्रो मॉलिक्यूल है, वो याद रखना। क्योंकि माइक्रो या फिर मैक्रो डिसाइड हम किससे करते हैं? एसिड सॉल्युबल इनसॉल्युबल से नहीं करते हैं, हम किसके बेसिस पे वो कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे कर रहे हैं, राइट। फिर हमने एलिमेंट्स भी देखे, 4 जो है वो मेजर एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 95%। फिर हमने देखे 9 दे आर माइनर, और वो उसके कितने परसेंटेज है? 5। एंड 12 जो हमने क्या देखे? ट्रेस एलिमेंट, और टोटल हमने देखे 25 एलिमेंट्स, ठीक है। इसके अलावा हमने प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है वो भी हमने देखा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा बेसिक इंट्रोडक्शन था। इन नेक्स्ट पार्ट वी विल प्रोसीड फॉर द फर्स्ट कार्बनिक कंपाउंड, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद हम देखेंगे प्रोटीन, एमिनो एसिड, एंड देन लिपिड, एंड लास्टली वी विल टॉक अबाउट द न्यूक्लिक एसिड। सो आई होप कि ये लेक्चर जो है वो आपको पूरा समझ में आया होगा। इफ यस, और ये लेक्चर अगर आपको समझ में आया, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बायोमोलिक्यूल और सेल, ये 2 चैप्टर अगर आपको समझ में आ गए तो उसका मतलब ये है कि फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, ये दोनों के आप ऐसा समझो कि 80% पार्ट कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर हो चुके हैं, राइट। तो ये चैप्टर जो है उसका भी बहुत अच्छे से नोट जो है वो बननी चाहिए।
तो अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो जो है वो देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। मेरे जैसे दूसरी भी बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में है, उसका भी आपको बेनिफिट होगा। और यही इन्फॉर्मेशन जो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। साथ में आप हमारा एप्लीकेशन जो है वो भी प्ले स्टोर में से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, अद्वैत अचीवर्स। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, लव यू ऑल, स्टे ट्यून। विद्यार्थी देवो भव, जय भारत।